اپنی سفر کا آغاز کیا ہے. سفر کرتے کرتے اللہ اکبر جو ہے جب سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم تن و تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. اب سرکار علی حیدی قریب آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا, اے علی حیدی کیا سوچ رہے ہو؟ سرکار علی حیدی نے کہا تھا, یا رسول اے میرے غوث اعظم میں یہی سوچ رہا ہوں جہاں غوث اعظم بیٹھتے ہیں وہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, وہاں ہزاروں کا ریلا ہوتا ہے, لیکن آپ پیر و مرشد جو ہے سرکار غوث اعظم تنہا بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر, ابھی یہی سوچنا ہی تھا. سرکار غوث اعظم نے کہا تھا, اے علی حیدی ذرا نظر کو اٹھا تو سکی. جب علی حیدی نے نظر کو اٹھایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا بغداد جو ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر, بشیر علی حیدی ہے جو ابھی تک جو ہے سرکار غوث اعظم کے پاس بیٹھے تھے, اب نظر سے اتنی دور چلے گئے, بصیرت کی نظر سے میرے غوث نے آواز دیا, علی حیدی یہ بتا کون سا زمانہ بہتر تھا؟ وہ دور بہتر تھا, وہ وقت بہتر تھا, وہ ساعت اچھی تھی جو تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اب کی ساعت بہتر ہے؟ سرکار علی حیدی بولتے ہیں, حضور وہ دور بہتر تھا, وہ وقت بہتر تھا جب آپ کے چہرے کا دیدار کرتا تھا. علی حیدی گویا کی بولتے تھے, جسے چاہا دل پہ بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب. صاحبوں, تو اس برفیلی رات میں ہم اگر بیٹھے ہیں نا تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ذرا مچل کے کہے سبحان اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اللہ الصمد جو ہے ہم اسی غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے صاحبوں, آپ یہ کہیں گے غوث اعظم کے ذکر پہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ غوث اعظم کے ذکر میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر دیکھا جائے غوث اعظم کا ذکر بھی ہو رہا ہے, میرے نبی آخر زمان کا میلہ. اللہ الصمد, آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہی بغداد شریف ہے جہاں میرے اور آپ کے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم جلوہ فکن ہے, جہاں میرے غوث اعظم کا مرقد ہے, جہاں میرے غوث اعظم کا مزار انوار ہے, جہاں غوث اعظم کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم وقت جو ہے اولیاء کاملین حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, وہی بغداد ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, بادشاہ بغداد نے ایک اعلان جاری کیا کہ ہم نبی کا ذکر سنیں گے, ہم نبی کا میلاد منائیں گے. اللہ اکبر, جب اتنا اعلان کیا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ نبی کے میلاد کے محفل میں وہی آدمی شرکت کرے گا جس سے بادشاہ کی دعوت موجود ہوگی, جس کے پاس بادشاہ کا فرمان موجود ہوگا, یہ ڈنڈی کارڈ موجود ہوگا, وہی دعوت کے لیے آئے گا. اللہ اکبر, ابھی اعلان جاری ہی ہوا تھا, ایک غریب کے کانوں کی صدا, ایک غریب کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے جو بیوہ تھی, جو مسکین تھی. اللہ اکبر, جو ہے آواز کو سنا ہے, اب تڑپ اٹھتی ہے, اپنی بیٹی سے کہا ہے, اے میری لال, میری لخت و جگر, بات اتنی سی ہے نا, بات اتنی سی ہے کہ آج میرے نبی کا ذکر ہے, آج میرے نبی کا میلاد ہے, ذرا ایسا کرو کہ نہا لو, خوشبو میں اپنے آپ کو تربتر کر لو, چلو نبی کا میلاد سننے چلتے ہیں. اللہ اکبر, جو ہے اب خوشبو لگایا ہے, نئے کپڑے پہنا ہے, اور پہننے کے بعد وہ عورت جب چلتی ہے بادشاہ کے محل کے قریب پہنچی ہے نا, بادشاہ کے دربان سپاہیوں نے روک دیا, اندر نہیں جا سکتی. کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہا بادشاہ نے جب پیغام دیا ہے, کیا بادشاہ کا دعوت نامہ تجھ تک پہنچا ہے؟ کہا نہیں آیا ہے. کہا اس لیے اب تو اندر نہیں جا سکتی. اس کے دل سے پوچھو تو ذرا صحیح, جو نبی کی عاشقہ ہو, جس کا صبح شام جو ہے, جس کے نام پر نبی کی صدائیں گونجتی ہو, جس کے دل زبان پہ میرے نبی کا چرچا ہوتا ہے, ذرا اس کے دل سے تو پوچھو جو میرے نبی کا ذکر کیا کر رہی ہو. اللہ اکبر, آنکھوں میں آنسو کے قطرات لے کر کے بادشاہ کے محل میں رونے لگی, دروازے پر کھڑی ہو کر کے, اے میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ نہا دھو کر کے آئی تھی کہ نبی کا میلاد سنیں گے, نبی کا ذکر سنیں گے. اللہ اکبر, لیکن کرم کیا ہو گیا, آخر معاملہ کیا ہو گیا؟ اے میرے مولا کیسی خطا ہو گئی کہ آج مجھے نبی کے میلاد سے دور کر دیا گیا, آج میں نبی کا میلاد نہ سن سکی. اللہ اکبر, ابھی
सोच ही रही थी ना कि अचानक दिल की दहलीज पर किसी ने दस्तक दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है, नबी के मीलाद के लिए लंबी महफिल की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा मजमा की जरूरत नहीं होती, ये पेंटिंग ये सजावट जो है इसकी जरूरत नहीं हुआ करती है। नबी का मीलाद दिल से सो करो जो है मेरे मुस्तफा खुद उसके घर चल करके आते हैं। उस बेवा ने कहा था बेटा मुझे तुझे कुछ याद है कि नहीं? बेटी ने कहा था अम्मा जी बात इतनी सी है ना, मुझे मुस्तफा की नात याद है, मुझे मुस्तफा की नात याद है। अल्लाह अकबर जब इतना कहा है, माँ ने सुना मेरे बेटी को मुस्तफा की नात याद है, कहा बेटा तुझे मुस्तफा की नात याद है, मुझे मुस्तफा की सीरत याद है। जरा मचल के कहा सुभान अल्लाह, मुझे मुस्तफा की सीरत याद है। कहा बेटा चल घर, काम बन गया, घर आती है, घर को उसकी सफाई करती है, खुशबू से मुअत्तर कर देती है, अपनी बेटी से कहती है बेटी खड़ी हो जा, मेरे मुस्तफा की नात पर गोया की आला हजरत की ज़बान में ये बोल दे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न है तो कुछ न हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर जो है अब बेटी मुस्तफा की नात पढ़ने लगी, मुस्तफा पे दरूद पढ़ने लगी, मुस्तफा की तारीफें तौसीफ करने लगी। अल्लाह अकबर बेटी बैठ जाती है, माँ ने मुस्तफा की सीरत को पढ़ना शुरू कर दिया है, माँ ने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा है। रात का तिहाई पहर गुजर गया, अल्लाह अकबर बगदाद की जामा मस्जिद से अज़ान फज्र की सदा आने लगी। बेटी ने कहा माँ ने कहा था मेरे लख्ते जिगर काम ऐसा करना, जरा चा बच्चों के लिए पानी लेकर के आ। अल्लाह अकबर बेटी ने अपने माँ के हुक्म की तकमील करते हुए लोटों को उठाया है और उसके बाद जैसे ही अपने चौखट पे कदम रखा एक चीख निकाली है, बेहोश हो गई। माँ ने आवाज सुनाओ मेरे लाल तुझे क्या हो गया है, मेरे लख्ते जिगर तुझे क्या हो गया है? अभी तू पानी के लिए निकल रही थी लेकिन ये आवाज कैसी आई है? माँ ने अपने आप को संभाला है, घर से जैसे ही चौखट पे कदम रखा ना अल्लाह पर एक चीख मारती है, बेहोश हो जाती है। क्या देखती है कि एक बुजुर्ग जो है उस शान शौकत वाला चेहरा, अजमत वाला चेहरा, चेहरा बता रहा था कि आले नबी है, चेहरा बता रहा था ये चमने सहरा का फूल है। अल्लाह पर उस औरत ने कहा था ए आने वाले शख्स बता दे जरा सही तू कौन है, मेरी चौखट को क्यों चूम रहा है? तो एक सदा आई थी, घबराने की जरूरत रही है, मैं शहंशाह बगदाद सरकार खौसे आजम हूँ। कहा हुजूर मेरी तहरीर को क्यों चूमा जा रहा है? तब उस वक्त खौसे आजम ने फरमाया था तेरी दहलीज को ही मामूली दहलीज रही है, अभी इन्हीं गलियों से चौखट से मैंने अपने नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जाते हुए देखा है, इसलिए मेरी चौखट को चूम रही है। तो पता क्या चला आज मैं जिसने ईद मिलादुन नबी जिक्र खौसुल वरा में आने वाले एक पैगाम लेकर के जाए, अगर आज भी हमारी नजरें दुरुस्त हो ना, मदीने के ताजदार करम फरमाते हैं मेरे आका आते हैं देखने के लिए, खौसे आजम की नजर चाहिए। अल्लाह अकबर तो मुझे कहने दिया जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक बिके ना फोटो कोई पूछता ना था तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। तो क्या फायदा मिलता है जिक्र गौसुल वरा से? फायदा यही मिलता है ना कि जहाँ नबी का मिलाद होता है, जिक्र गौसुल वरा होता है ना, मेरे मुस्तफा खुद मदीने से चल के आते हैं, है ना। फायदा यही होता है, वो आंखें दीदार गौसे आज़म करती है जिनके दिल में सिद्क़ ताज़ में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने की तड़प और ललक रहती है। साहिबों आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ सीरत की रोशनी में ये कौन है सरकार गौसे आज़म, है ना। सीरत गौसे आज़म सुनने बैठे थे, मरतबा मचल के कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर जो है कौन है सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए दिल के कानों से आप समाअत करें, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात व बरकत वही है कि जब सरकार अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे नबी ने जुब्बे अक़दस दिया था कि जाओ उमर और अली ये जुब्बा मेरे अवैस को दे देना और कह देना कि मेरे उम्मत के लिए दुआ करेंगे। बहुत ऊंची रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना। कौन अवैस? अल्लाह अकबर जिसने अपनी माँ की खिदमत करने के लिए जिंदगी में कभी भी जो है सरकार अवैस करनी मेरे मुस्तफ़ा के
का चेहरा नहीं देखा, अल्लाह अकबर, लेकिन अपने महबूब से बेपनाह इश्क मोहब्बत किया करते थे। वो अबैसे करने की ज़ाते बरकत है, जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम भेजा हो, जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने अपना पैराहन भेजा हो, अपना जुब्बे अक़दस भेजा हो, बताइए उस अबैसे करने की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर जो है जुब्बे को रख दिया है अबैसे करने ने, और दुआ करना शुरू किया है, दुआ करना शुरू किया है ना। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, अबैस ऐसा है ना, आधा तेरी दुआ की बदौलत, आधा मेरे महबूब का महबूब दुनिया में आने वाला है, जिसे गौसे आज़म कहते हैं, उसकी दुआ की बदौलत जो है आधी उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत करूंगा। अल्लाह अकबर इतना कहना था, सरकारे अबैसे करनी ने फरमाया, ए मेरे मौला क्यों, कौन है मेरे महबूब का महबूब, क्या मैं उसकी ज़ियारत कर सकता हूँ? जरा सोचो तो सही, ये अक्ल के अंधों को बता दो, अभी मेरा खौस दुनिया में आया नहीं था, अभी मेरा खौस आया नहीं था। अल्लाह अकबर खैरुल कुरून की बात कर रहा हो, सैयदुत ताबईन अबैसे करनी कह रहे हैं, ए मेरे महबूब कौन है गौसे आज़म, क्या उसका दीदार मैं कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर इतना कहना था ना, खुदा के कसम अक से जो है सब अबैसे करनी के अंगूठे पर अक्से गौसे आज़म नजर आ गया। अल्लाह अकबर उस वक्त कहा था कि ऐसा है, यही हुआ है उम्मत का खौफ, इसकी सारे वली अल्लाह का कदम जो है उसकी गर्दनों पर होगा। अल्लाह अकबर जो है उसका कदम सारे वली अल्लाह की गर्दनों पर होगा। उस वक्त जो है खुदा के कसम अबैसे करने ने जब आग से जो है गौसुल आज़म को देखा है तो फरमाया है, ए मेरे महबूब के महबूब, दुनिया में आने से पहले अबैसे करनी जो है अपने गर्दन को झुका रहा है, दुनिया की ये कहरहोट है, ये शेष है, ये दिल है, ये दिल है, जिगर है, जहां चाहो रख दो कदम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहींशाहे बगदाद, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरुल कुरून में पैदा होने वाला अबैसे करनी, जो मेरे महबूब का महबूब हो, वो मेरे नबी की आल सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अपनी गर्दन को झुका दे रहा है। जब आएंगे लोग तब झुकाएंगे, जब आएंगे मेरे गौस करम फरमाएंगे तब झुकाएंगे, लेकिन अबैसे करनी आज ही अपनी गर्दन को झुका रहा है। कोई ऐसा इंसान जो सैयदुत ताबईन हो, खैरुल कुरून में पैदा होने वाला हो, जिसकी बशारत जन्नत की मेरे मुस्तफ़ा ने दिया हो, लेकिन क्या करम है, ज़हरा के लालों का क्या अदब है कि दुनिया में आने से पहले अक्से गौसे आज़म देख करके गर्दन झुका ले रहा है। कोई इंसान ऐसा कायनात में, जरा ऐसी मोहब्बत हो तो बता दो साहिबों। आज हम जिसका हाथ पैर सब चूमे, उसके बाद उसी की बुराई भी किया करते हैं। फला साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे, ये झूठ में जो है मक्कारी और यारी से क्या फायदा। अगर हाथ पैर चूम रहे हो तो अदब के साथ भी चूमा करो। सही है, सही है। ये सौदाबाजी है, तसन्नुबाजी, ये मक्कारी अय्यारी मुझे नहीं आती। जिससे मोहब्बत करो तो दिल से मोहब्बत करो, मोहब्बत भी हो तो बेपनाह होनी चाहिए, अगर नफरत भी हो तो क्या बात है, हक है। लेकिन आज हमारा मिजाज बदला है। आओ सहरा के लालों के घर का पावर देखो जरा। भाई साहब आप लोग कुछ तो बोल दे मोहब्बतों से, और जोर से बोलते यार। और कुछ ही बात बताने जा रहा हूँ, कसम खुदा की आले ज़हरा का कि अगर नजर किसी पे पड़ जाए फिर तो उसी साहब तो उसकी जिंदगी सवर जाए। कहाँ है वो लोग जो बकवास किया करते हैं कि नबी कुछ जानते नहीं है, नबी कुछ देते नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा की एक हदीस है ना, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई छोटा बड़े को देखे तो सलाम करे, बड़ा छोटे को देखे तो सलाम करे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम मामला क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा सलाम दायमी मोहब्बत का जरिया हुआ करता है, नफरतों को दोस्ती में तब्दील कर दिया करता है। आका बलमा बयान फरमाते हैं अगर कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से सवार होके जा रहा है ना, तो साइकिल वाला पैदल वाले को सलाम करे। कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, तो बाइक पे सवार होने वाला साइकिल पे सवार होने वाले को सलाम करे। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई चार चक्के फोर व्हीलर से जा रहा है,
तो 4 चक्का से जो जा रहा है ना, वो मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे ताकि उसके दिल से हसद, किब्र, किना, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। सलाम एक ऐसा पैगाम है ना, अल्लाह अकबर, जो दूर के लोगों को करीब कर दिया करता है, जो दूर के लोगों को क्या कर दिया करता है, करीब कर दिया करता है। आओ ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे यहाँ का मिजाज बदला है, चालो चलन बदला है, रहने का अंदाज बदला है। आज हम सलाम उसी से करते हैं जिससे कोई फायदा होता है। आज सलाम हम उसी से करते हैं जिससे ये जानते हैं बहुत बड़ा दौलतमंद है। आज हम सलाम उसी से करते हैं जिससे ये जानते हैं इसका पावर बहुत मजबूत है। याद कर, कोई पावर किसी का नहीं होता है, सबसे बड़ा पावर ज़हरा के लालों का हुआ करता है। याद कर, कायनात में किसी का सिक्का नहीं चलता, सबसे बड़ा अगर सिक्का किसी का चलता है तो आले गौसे आजम का चला करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, साहिबो दिल के कानों से सुनो, सलाम को फैलाया करो। अगर आलिम है तो ये मत समझो हम मुफ्ती हो गए हैं तो हम किसी को सलाम नहीं करेंगे। याद रख, तू कितना भी बड़ा मुफ्ती हो जाए, तू कितना भी बड़ा फकीह हो जाए, लेकिन मेरे नबी के फरमान से बड़ा नहीं हो सकता है। याद कर, मेरे नबी ये आखिर समा के मिशन और जो मेरे नबी ने पैगाम दिया है उससे तो बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे नबी जो है, अगर दिल को कह दे ये रात है तो रात हो जाए, रात को कह दे दिल तो दिल हो जाए। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, खुदा की रजा जो है चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर जो है, मेरे नबी से बड़ा कायनात में कोई नहीं हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मिल्लत के नौजवानों, दिल के कानों से सुनना जरा, आज सलाम उसी से किया जाता है ना जो पावरफुल होता है। सलाम उसी से किया जाता है जो बहुत बड़ा ताकतवर होता है, जिसका कबीला मजबूत होता है, जिसकी बिरादरी मजबूत होती है। लेकिन हकीकत यह है, ये सारी चीजें मुतनाज़िर चीज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज़रात मोहतरम मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर शौहर जो है अपनी बीवी पे पहली नजर पड़ जाए तो शौहर पे जरूरी है कि बीवी को सलाम कर लिया करे। बीवी अपने शौहर को देखे तो अपने शौहर के चेहरे को देख करके मचल करके सलाम कर लिया करे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल उस घर में होता है जहाँ बीवी और शौहर मुस्कुरा के मिला करती है। ये नहीं है कि अगर शौहर कहीं से आ रहा है तो बीवियां बैठ जाए और उसका इतना ज्यादा जो है, इतनी ज्यादा बातें सुना दे कि शौहर फौरन घर से निकल जाए। मेरे मुस्तफा की हदीस है, एक बात सुनो, मैं मौजू से बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरे मुस्तफा की हदीस है ना कि बीवियां जब सुने कि मेरा शौहर परदेश से आ रहा है ना तो उसके इंतजार में बैठी रहे। ये भी जो है सुन्नतें जो है उम्महातुल मोमिनीन है कि मेरे आका कहीं सफर पे है, और जब सुनती थी उम्महातुल मोमिनीन, हम सबकी बात सुनती थी, मेरे आका आ रहे हैं, इंतजार में बैठ जाती थी कि मदीने के ताजदार आ रहे हैं, खिजरबे खूबा आ रहे हैं, सयाहे लामका आ रहे हैं। पता क्या चला, अगर किसी बीबी का शौहर बाहर है और उसे ये पता चल जाए कि मेरा शौहर आ रहा है तो अदब के साथ उसका इंतजार करना चाहिए। अल्लाह के ऊपर जो है, जरा देखो तो सही, जब घर पे पहुंचे ना तो मोहब्बत से सलाम करना चाहिए। लेकिन आज मिजाज तब्दील हो चुका है। अगर कोई बड़ा मुफ्ती है तो कम पढ़े लिखों को भाव नहीं देता है, कोई बहुत बड़ा पीर है ना तो अपने से छोटे को भाव नहीं देता है। जो कुछ मैं हूँ वो मैं ही हूँ, बकिया कोई नहीं है। याद कर मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे आजम के दौर में एक अल्लाह के वली थे जो गौसे आजम के 3 साल का बचपना है। मेरे गौसे आजम की उम्र सिर्फ 3 साल की है। वो बुजुर्ग जो है सरकारे गौसे आजम के पास से गुजरे है ना, सरकारे गौसे आजम बच्चों के बीच में बैठे हैं। उस बुजुर्ग ने सलाम किया था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना कहा था ना, सरकारे गौसे आजम ने जवाब 2 मरतबा दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। उस बुजुर्ग ने पूछ लिया जो है, ए शहजादे, बात इतनी सी है ना, चेहरा तो बता रहा है बड़ी बाशौकत वाला आदमी है, दुशानो शौकत वाला आदमी है, बड़ी इज्जत वाला आदमी है, इतना हसीन जमील चेहरा जो है मैंने इस सदी में किसी शख्स का नहीं देखा। ए बेटा, तूने 2 मरतबा जो है सलाम का जवाब दिया है, दिल के कानों से सुने, शायद मेरी बात तेरे दिल में घर कर जाए। अल्लाह पर इतना कहना था। मेरे सरकारे गौसे आजम की ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, सिर्फ फकत 3 साल। कितनी साल उम्र है, जरा जोर से बोलो, 3 साल की उम्र है। इतना कहना था ना,
سرکار غوث اعظم نے فرمایا حضرت جی بات اتنی سی ہے نا، آج سے 3 سال پہلے سیدوں کے محلے سے آپ کا گزر ہوا تھا نا، آل زہرا کے گھروں سے، آل زہرا کے گھروں سے آپ کا گزر ہوا تھا نا، اس بستی سے گزر ہوا تھا نا۔ اس بزرگ نے اپنے ماضی کا سنہرا وقت یاد کیا ہے اور فرمایا ہاں ہاں اس بار آل زہرا کے گھروں سے میرا گزر ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی عمر 3 سال ہے، ہم اپنے پیر و مرشد کا ذکر کر رہے ہیں، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ شان غوث اعظم بیان کر رہا ہو، کہاں گزر ہوا تھا نا، ہاں ہاں ہوا تھا حضرت جی، آپ نے اس گھر پہ سلام پیش کیا تھا اس نیت کے ساتھ یہ آل نبی کا گھر ہے، یہ زہرا کے لالوں کا گھر ہے، ہاں کیا تھا، کوئی جواب نہیں آیا تھا، آپ قبیلہ خاطر ہوئے تھے، آپ اداس ہو کر کے اپنے قدم کو بڑھایا تھا، آپ دل میں ایک تصور لے کر کے چلے تھے یہ کیسا سیدوں کا گھر ہے کہ سلام کرو جواب نہیں ملتا، آپ دعا کی نیت سے سلام کیے تھے۔ اللہ اکبر جو ہے، اب اس بزرگ بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، یہ کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بچپن سے ولی کامل مجھے معلوم ہوتا ہے، ارے 3 سال پہلے کی باتوں کو بتا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، نظریں جھک گئی، ہاں شہزادے بات یہی ہے تو سرکار غوث اعظم نے کہا حضور اس وقت جب آپ نے سلام کیا تھا خدا کی قسم میں ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سلام کا جواب دوں، لیکن حقیقت یہی ہے میری زبان رک اس لیے گئی کہ اگر میں سلام کا جواب دے دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی۔ آج سے 3 سال پہلے جو سلام جو کر کے سیدوں پہ قرض لاد کر کے گئے تھے، پہلا سلام کا جواب ہوا ہے اور دوسرا جو آج ابھی آپ نے سلام کیا ہے اس کا جواب غوث اعظم دے دیے ہیں۔ ارے ذرا عقل کے اندر سے پوچھو، سرکار غوث اعظم آل نبی ہے، 3 سال پہلے کی بات وقت کے ولی کامل کو بتا دو تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی آخر سما کا کہ شان کیا ہوگی، تو مجھے کہنے دیا جائے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان سوارا کی چھولی، محتاج قدبی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہنشاہ بغداد، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، ہم اس غوث اعظم کا ذکر سننے بیٹھے ہیں کہ 3 سال پہلے ماں کے شکم میں موجود ہو نا، اگر کوئی سلام کر کے جائے تو میرا غوث کہتا ہے فلاں وقت میں فلاں دن میں سیدوں پہ تو قرض لاد کے گیا تھا، رکھ کر کے گیا تھا۔ آج پہلا سلام کا جواب غوث اعظم 3 سال پہلے جو سیدوں پہ قرض رکھا تھا نا اس کا جواب دے کے غوث اعظم نے اس کا جواب دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، رفعت غوث اعظم کیا ہے، شان غوث اعظم کیا ہے۔ بھائیوں ہم غوث اعظم کو ایسے غوث اعظم نہیں مانتے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصر میں سب سے بڑی فوقیت کے حامل ہے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون ہے سرکار غوث اعظم، کتاب کا حوالہ نوٹ کرے، اللہ الصمد صاحب مرقات علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم چیلان سے بغداد پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ بغداد پہنچے۔ جب بغداد پہنچے نا، اللہ الصمد کسی نے کہا تھا غوث اعظم بات اتنی سی ہے نا کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس ہے، چلو حاضری دے لیا جائے۔ اللہ اکبر، پوچھو امام اعظم، پوچھو احمد ابن حنبل سے کہ شان غوث اعظم کیا ہے۔ میرا وقت کا جو ہے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم 14 صدی کے امام نے صرف میرے نبی آخر الزماں کے شہزادے سرکار غوث اعظم کی تعریف کر کے یہ نہیں فرمایا تھا واہ کیا مرتبہ ہے غوث وہ بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ یہ 14 صدی کے امام نے صرف تعریف نہیں کیا، اللہ اکبر اس دور کے بزرگ بھی غوث اعظم کی ترانے گاتے تھے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب مرقات لکھتے ہیں نا، جب دوستوں نے اتنا کہا تو سرکار غوث اعظم نے اپنے سفر کا آغاز کیا بغداد میں چونکہ موجود ہی تھے، احمد ابن حنبل کے مزار مقدس پر تشریف لے گئے۔ سرکار احمد ابن حنبل کے مزار کے قریب ہی پہنچے نا، تاریخ شاہد ہے، علامہ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ پہنچے ہیں نا،
सरकार इमाम अहमद हम्बल की कब्र फटी है। सरकार इमाम अहमद ने हम्बल जो है हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कब्र से बाहर निकल कर के आते हैं। सरकार गौसे आजम को सीने से लगाया है और एक फरमान जारी किया है, ऐ गौसे आजम शहजादे रसूल मेरी नजरें देख रही है, सारे मुल्क बोल करके खामोश हो जाएंगे। गौसे आजम आपका शोहरा जो है सुबह कयामत तक बजता रहेगा, आपका टंका सुबह कयामत तक बजता रहेगा। जरा देखो तो सही ये कौन कह रहा है? सरकार अहमद में हम्बल कह रहे हैं और फरमाया था, ए शहजादे रसूल, ए ज़हरा के लाल इतना करम फरमा दे। आज बगदाद शरीफ में मेरे मसलक की तकलीद करने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा करना आप जो है आज के तारीख से इमाम अहमद ने हम्बल का के मसलक का सबसे सच्चा और पक्का अगर कोई सिपाही हो, ए शहजादे, ए शहजादे, ए नबी की आल आज से तुम रहोगे। जरा सोचो तो सही क्या अजमत है, क्या शान है कि वक्त का मुस्तहिद जो है, वक्त का इमाम सरकार अहमद इब्न हम्बल ये कह रहे हैं आज से जो है मसलके हम्बली की जो है बागो बेल जो है अगर किसी के हाथों में रहेगी, एक गौसे आजम तुम्हारे हाथ में रहेगी। अल्लाह अकबर, उस गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, उस गौसे आजम का हम तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह समद उस गौसे आजम की महफिल में शिरकत किए हुए है, जिस गौसे आजम ने 20 साल तक जो है तालीम के उलूम व फनून को हासिल करने के बाद जो है जंगलात में बैठ करके मुजाहिदा इसलिए किया है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। घर छोड़ा है अल्लाह की रज़ा के लिए, औलाद को छोड़ दिया है जंगल गए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। हातिफ़ ग़ैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर जिलानी, तूने घर को छोड़ा है मेरी रज़ा के लिए, तूने औलाद को छोड़ा है मेरी रज़ा के लिए, तूने जिलान को छोड़ा है। बगदाद आए हैं, बगदाद से हिजरत करके जंगल पहुंचे हैं, इबादत रियासत किया है मेरी रज़ा के लिए। ए गौसे आज़म, तेरा नाम हम मिटने नहीं देंगे, सुबह क़यामत तक दौर किसी का हो, हुकूमत किसी का हो, लेकिन जहां जहां नबी के जो है दीवाने रहेंगे, गौसे आज़म तेरे नाम के तराने गूंजते रहेंगे। तो मुझे कह लेने दिया जाए साहब, जब तक बिके ना फोटो कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस गौसे आजम का जिक्र करने बैठे हैं। सरकार गौसे आजम की एक नसीहत सुने, अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करे, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हजरत का बयान हमें और आपको सुनना है ना भाई, सुनना है ना? तो जो कुर्सियां खाली हैं